Hello, everyone. Good morning, all of you. And thank you all for joining this webinar in the morning for with us. We welcome you, your future global leaders at Career Universe with our knowledge partner, Podar Business School, Jaipur, an innovative and emerging best school. So Career Universe is a committed portal to help you all to choose your career in various fields in which you want to go with the availability of resources that you got, like finance, eligibility, your interest, the future growth in that field. Hope you all agree with me. So you have to think beyond IIMs, beyond other institutions. You have to check your fit. Fit means finance, your interest, and your trend, the trend that is going on, the technological trend. So you have to be like the flowing water. So hi, this is Simran from Career Universe, and I welcome you all. For more details, or if you want to consult more, you can visit our website, careeruniverse.in. And today we have an expert with us who will guide us about a new window open for food and agri-business learners, which will help you decide your future goals in life and how to prioritize your plan of action. Let me introduce you my guest of the day, Dr. N.K. Gupta. So, Dr. Narendra Kumar Gupta is from Rajasthan. He is also awarded with University Gold Medal in MSc Agriculture Plant Psychology from Rajasthan Agricultural University, Bikaner. He conferred PhD degree from prestigious IARI New Delhi. Dr. Gupta also initiated his professional career in 1996 as an associate professor in Rajasthan Agricultural University, Bikaner, and rose to the level of professor in 2011. He had also served as dean also in College of Agriculture, Navagaon, Alwar, and controller of examination in SKN Agricultural University before joining the post of director education. So thank you, sir, for joining us today in the morning, and over to you, sir. So sir, I would like to ask you about the food and agribusiness opportunities and companies in India, and what is this all about? Over to you, sir. Okay, thank you. Good morning. First of all, I must thank Dr. Arora for giving me this opportunity. And before starting, sir, I would like to know the audience are undergraduate students or school going students, they just opt for college. These are mixed, sir. These are mixed. Some Okay. are the doing graduation, some are post graduation. So they want to know about the exclusive career opportunity in food and agribusiness or agriculture, agro farming, agro tourism. These are the. Okay, sir. Sir, first of all, actually, can I have some slide sharing, sir? Yeah, you can share, sir. Or, if you want to share, you can share, sir. Yeah. And sir, request just make a mixed language, Hindi and English both. Okay, sir. Okay, please. Actually, first of all, I would like to say that what is the agriculture? Actually, whenever we talk about agriculture, it means because life starts from agriculture and then medical and then technology. एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जहां पर बहुत कम लोगों को पता है. जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग GRE 20, we are expecting 50% GRE and now we have 25 to 20% GRE. लेकिन एग्रीकल्चर के केस में वी आर एक्सपेक्टिंग दैट there should be 9.5% GRE and unfortunately we have less than 2% GRE at this moment. And agriculture is the backbone of the country. लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि एग्रीकल्चर होता क्या है. तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया है हमारे देश में जो टोटली पैक्ड है एंड इट इज गवर्न्ड बाय ICAR. नाम सुना होगा स्टूडेंट्स हैं ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. इसके अंडर में 75 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर एग्रीकल्चर, फूड, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरीज, सेरिकल्चर, बहुत सारी चीजों की एजुकेशन दी जाती है. इफ इन ब्रॉड टर्म अगर हम बात करें, we have 11 types of undergraduate programs, 97 types of postgraduate programs, and 76 types of PhD programs.
लगता छोटा सा है बट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्कोप है। स्लाइड शेयर थोड़ा कर लें सर। हेलो। यस सर, मैं आपका ना होस्ट बना रहा हूँ, आप शेयर कर सकते हैं फिर। यस सर। फिर आप वापस मुझे होस्ट बना देंगे। जी सर। राइट। यस, आई मेक यू होस्ट सर। नाउ सर यू आर अ होस्ट। ओके सो जस्ट शेयर स्क्रीन, एक ग्रीन कलर आ रहा हूँ। यस। So this is about ICAR. ICAR was established before independence in 1929. And today, if we talk about the ICAR, we have a huge network. The ICAR has 113 research institutes, 76 universities all over the India, and whatever research पोस्ट होती है जहाँ फूड भी इन्वॉल्व रहता है। एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो पूरे देश में 40 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ एग्रीकल्चर के कोर्सेज होते हैं, फूड के भी वहाँ कोर्सेज होते हैं, जैसे डेयरी साइंस के भी कोर्सेज होते हैं। 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें एक इम्पोर्टेंट है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, जहाँ पर आपके फूड और एग्रीकल्चर के बहुत सारे कोर्सेज हैं, डेयरी के बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा IARI न्यू दिल्ली है, अलग से है, जिसमें BHU AMU वगैरह हैं। हॉर्टिकल्चर जो कि फूड का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह की बात करते हैं कि जो हार्वेस्टिंग के बाद किस ढंग से फूड को प्रोसेस किया जाए, किस ढंग से पैकेजिंग की जाए, किस ढंग से एक्सपोर्ट किया जाए। तो 7 यूनिवर्सिटीज देश में इस ढंग की हैं जो टोटली हॉर्टिकल्चर के लिए डेडिकेटेड हैं। 15 यूनिवर्सिटी वेटनरी हैं और 3 फिशरीज की यूनिवर्सिटीज हैं। तो कुल मिलाकर एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे देश में है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये एग्रीकल्चर का मतलब केवल एग्रीकल्चर नहीं होता है, एग्रीकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड, वेजिटेबल्स, फिशरीज, सेरिकल्चर, बहुत सारी चीजें हैं। और हमारे देश में 113 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिसर्च के लिए काम कर रहे हैं, साथ में टीचिंग भी कर रहे हैं, और वहाँ एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, एज वेल एज आफ्टर MBA और PhD। तो स्टूडेंट्स कैन लुक फॉर दिस फैसिलिटीज एंड ये दिस एडमिशन प्रोसेस है। ये देखिए मैंने बताया आपको कौन कौन से कोर्सेज हमारे यहाँ होते हैं BSc में। अगर बात करते हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी जहाँ फूड का होता है, फूड टेक्नोलॉजी में हम BSc BTech कराया जाता है। और ये जो 76 यूनिवर्सिटीज है, इसमें कई यूनिवर्सिटीज में फूड टेक्नोलॉजी में BTech भी होती है। बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस जो मैं बात करता हूँ, हर KVK पर एक कम्युनिटी साइंटिस्ट होता है। फूड न्यूट्रिशन डाइटिशियन का कोर्स भी हम कराते हैं, सेरिकल्चर भी कराते हैं, और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। इस तरह से 11 कोर्सेज हैं जिसमें PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, physics and chemistry and agriculture students all are eligible. You can take admission after doing BSc AG or BTech in food technology, in agribusiness management, or in biotechnology or in agriculture. You can opt to go for MSc AG or for biotechnology or for agribusiness. Actually, after doing undergraduation, our students have 2 choices. Either they do MSc or MTech. If engineer side students, they do MTech, or agriculture side students do MSc. Otherwise, some of the students, they want to go for private sector or they opt for self business, then they opt to go for MBA. So both are options are available. MSc में हम क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट MSc या MTech करते हैं उनको डीप नॉलेज दी जाती है सब्जेक्ट की, और रिसर्च ओरिएंटेड बनाया जाता है ताकि दे कैन बिकम द साइंटिस्ट। जो स्टूडेंट्स MBA, एक्चुअली एग्रीकल्चर में जो MBA करते हैं उनको हम बोलते हैं ABM,
मैनेजमेंट, वो स्टूडेंट्स, उनको हम सिखाते हैं एग्री कोर्स से, तो वो बेसिक कोर्सेज पढ़ाते हैं, प्रोसेसिंग, दे कैन सेल इन द मार्केट, दे कैन मेक ऑन बिजनेस, और दे कैन सिट विद द कॉर्पोरेट टू मेक बेटर अपॉर्चुनिटीज इन प्राइवेट सेक्टर्स। एडमिशन की हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स बीएससी के बाद अगर एमएससी में आना चाहते हैं, उनके लिए आईसीएआर का एक जेआरएफ एग्जाम होता है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्यूसेट एग्जाम होता है। वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज में लागू है जो एग्रीकल्चर में एमएससी कराते हैं, या फिर हर स्टेट यूनिवर्सिटी अपने खुद का टेस्ट करती है। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें, वी हैव जेट, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, उसके थ्रू एमएससी में आते हैं। जो स्टूडेंट्स एमबीए ऑप्ट करते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, दे कैन कम थ्रू कैट, मैट, जेट, सीमेट, क्यूसेट और AIEE। एग्जाम पैटर्न टोटल डिफरेंट होता है। एमएससी के लिए हमारे कॉमन टेस्ट होता है स्टेट यूनिवर्सिटीज में, जहाँ पूरे जो बीएससी में सब्जेक्ट पढ़े हैं उसका पूरा एक पेपर होता है 100 क्वेश्चंस का, और उसमें मेरिट बनती है। लेकिन जो एबीएम करते हैं उनके लिए इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, और इट इज फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो दोनों का पैटर्न डिफरेंट है। स्टूडेंट को सोचना है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। अगर एबीएम करना चाहते हैं, दे मस्ट हैव गुड बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स, रीजनिंग एक्सेट्रा। स्कोप की अगर हम बात करते हैं, एम्पल अपॉर्चुनिटी आर देयर इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जहाँ डायरेक्टली आप एमबीए के बाद या एबीएम के बाद जा सकते हैं। जनरली हमारे स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। बैंक्स की पहली पसंद तो होती है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, या एमबीए, एमबीए मीन्स एबीएम, या फूड वाले स्टूडेंट्स उनको लेते हैं। फूड में एक्चुअली दो तरह के कोर्सेज हमारे होते हैं, जैसे मैंने बताया बीएससी भी होती है और बीटेक भी होती है। जो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें कोर्स होता है CDST, कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ भी फूड टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। वो सारे स्टूडेंट्स या तो बैंक्स में प्रेफर किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में कई पोस्टें निकलती हैं उनमें भी जा सकते हैं। इसके अलावा सिविल सर्विसेज जो हमारे स्टूडेंट जाते हैं। अगर आपने उसके बाद MSc PhD कर ली, यू कैन बिकम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और असिस्टेंट। हमारा एक पूरा कॉलेज चलता है एबीएम का। जैसे जॉब की बात करें, ABM एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का पूरा कोर्स होता है, 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स है। उसमें बाद में मैनेजमेंट ट्रेनिंग बनाते हैं, जैसे नाबार्ड टाइप की जो बैंक्स हैं जहाँ केवल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, या फिर आजकल प्राइवेट सेक्टर में डेयरी कॉलेजेज आ रहे हैं। कई डेयरी जैसे अमूल डेयरी वगैरह में हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं। इसके अलावा जो एग्रो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मान लो फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री जितनी भी हैं, दे प्रेफर एबीएम स्टूडेंट्स। FMCG या क्वालिटी कंट्रोल है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट और राजस्थान में पोस्ट निकाले थे AFO, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स, वहां पर भी इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है। बेस्ट कॉलेज की अगर हम बात करें एग्रीकल्चर का, तो मैं बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने बताया 75 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें सबसे प्रेफरेंस हम ICAR इंस्टीट्यूट्स को देते हैं, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देते हैं, उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी को देते हैं। MBA के बहुत सारे कॉलेजेज हैं जहाँ एग्रीकल्चर से या फूड में MBA आप कर सकते हैं, एग्री बिजनेस कर सकते हैं। IIMs हैं। IIMs को सबको पता ही होगा। मैनेज के बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा। ये हैदराबाद में है और उसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स ही जाते हैं। इस तरह नार में कुछ सीटें हैं जो फूड और रूरल मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहती हैं रिजर्व। इरमा जो अहमदाबाद में, वहाँ भी स्टूडेंट्स जाते हैं। SAUs में ABM के नाम से अलग से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे हमारे यहाँ भी है। बीकानेर का कोर्स बहुत अच्छा है। इसके अलावा पंतनगर का बहुत अच्छा कोर्स है। जयपुर में एक नियाम इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, वहाँ भी फूड के या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी कोर्सेज वहाँ पर है, वहाँ भी आप MBA कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में कई सारे कॉलेजेज हैं जो आपको फूड में या एग्रीकल्चर में BSc करने के बाद में आपको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर प्रोग्राम कराते हैं। एक्चुअली फूड की जब हम बात करते हैं तो किस ढंग के कोर्सेज होते हैं, मैं थोड़ा बनाया है। इसमें होता है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं PGP FABM। दूसरा होता है PGP ABM, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तीसरा है PGP RM, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन रूरल मैनेजमेंट। और एक है ABM, मास्टर्स प्रोग्राम इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आपने फूड में या एग्रीकल्चर में अंडर ग्रेजुएट किया है
you can opt any course and you can get a good job after doing post graduate program. ये 2 साल का होता है और ये बहुत सारे मैंने प्लेसमेंट्स आपको बताए हैं। तो सर मेरे ख्याल से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है। हाँ जी सर, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे से इस कंपनीज के बारे में, और मतलब इसमें अगर बच्चे जाएं तो मतलब व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड, वो आगे मतलब इन फील्ड्स को लेकर क्या बन सकते हैं, क्या करियर उनके लिए ओपन रहेगा, क्या अपॉर्चुनिटीज रहेगी उनके पास? हाँ देखिए, मैं बताऊँ आपको, अगर आपने अंडर ग्रेजुएट किया है तो दे आर द पोजीशंस दैट यू कैन बिकम। सबसे बड़े सिविल सर्विसेज हमारे काफी बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं। इसके लिए अलावा एक आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। जो स्टूडेंट्स को जरा भी एग्रीकल्चर या फूड का आइडिया है, दिस इज स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर हैविंग नॉलेज ऑफ प्लांट्स, आईएफएस। इसके अलावा बैंक्स जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड बैंक टोटली उन्हीं लोगों को लेती है जिनका एग्रीकल्चर या फूड है, इस ढंग के जो सब्जेक्ट्स हैं, हॉर्टिकल्चर, उनमें एक्सपोजर होता है। क्योंकि किस चीज का उन लोगों, एओ कृषि अधिकारी होते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, एएफओ एग्रीकल्चर फूड ऑफिसर। अभी करीब राजस्थान गवर्नमेंट ने, आपको याद हो, 2023 में करीब 200 पोस्ट निकाले एएफओ की, एग्रीकल्चर फूड ऑफिसर। यहाँ सब आपके स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, यहाँ पर भी स्टूडेंट जा सकते हैं अगर उनका अंडर ग्रेजुएट्स एग्रीकल्चर या फूड में है। स्टेट गवर्नमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं जिनको हम बोलते हैं सहायक कृषि अधिकारी, फूड ऑफिसर होते हैं, फॉरेस्टर होते हैं। इन सब पोस्टों के लिए जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं एग्रीकल्चर में, फूड में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, दे आर अलाउड। इसी तरह अगर मान लो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपका मन प्राइवेट जॉब में जाने का है, तो बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे अमूल है, आपके जितने भी एफएमसीजी है जो फूड से रिलेटेड है, वो सब एग्रीकल्चर के बच्चों को लेती हैं, फूड के बच्चों को लेती है, माइक्रोबायोलॉजी के बच्चों को लेती हैं। हकीकत तो यह है कि बच्चे मिलते नहीं हैं और हमारे बच्चे ज़्यादातर सीड और फर्टाइल कंपनी में चले जाते हैं, और फूड में बहुत कम बच्चे जाते हैं। इसलिए उनके लिए एक डिमांडिंग जॉब है कि दे मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर और फूड। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए हमारे देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है फूड का, 20% प्रोडक्शन जो है पेरिशेबल होने की वजह से खराब हो जाता है। तो प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी आ रही हैं और ऐसा मानते हैं कि आने वाले टाइम पे फूड का बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ेगा। और इसीलिए अगर हम राजस्थान की बात करें या देश की बात करें, पिछले 2 साल 3 साल में बहुत सारे कॉलेजेस फूड के और डेयरी टेक्नोलॉजी के बढ़े हैं, और यही कारण है कि शायद डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आपने एमएससी या एमटेक कर लिया है या आपने एग्री बिजनेस कर लिया है, तो आपको के पास अपॉर्चुनिटी और भी खुल जाती हैं, और आप एडवांस जो कंपनीज हैं, एफएमसीजीज हैं, या फूड से रिलेटेड कंपनीज हैं, डेयरी से रिलेटेड कंपनीज हैं, वहाँ बड़ी पोजीशन आप ले सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मैडम एक्चुअली, बस नॉलेज होनी चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल। इसमें बच्चे मतलब आपसे बात करके और इस सेशन के बाद बच्चों को पता रहेगा कि इस फील्ड में और क्या बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं, किस तरीके से किस जॉब के लिए भी अप्लाई कर यस सकते मैडम। हैं। बाकी सर अगर बच्चों की कोई क्वेरीज रहेगी तो वो आपको इसमें मैसेज कर देंगे, तो आप या हम हमारे के भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसको इस फील्ड में बच्चों को क्वेश्चंस है। बच्चों को कोई भी जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, दे कैन आस्क मी एट एनी टाइम, दे कैन कॉल मी, दे कैन व्हाट्सएप मी, and if they are interested in this type of jobs, I have one YouTube channel, Agri Plus Jaipur. They can ask on that channel also. मतलब सर दिस फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो प्रोग्राम बच्चों के लिए मतलब कितना और यूजफुल हो सकता है? इट्स यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स, राइट? कोई सारी आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज बताई उसमें सब बताकर, तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स जो अगर इसमें स्कोप देख रहे हैं। इसमें बहुत काफी अच्छा स्कोप है। इसमें दो चीजें हैं। जो स्टूडेंट्स एग्री या फूड करने के बाद में मैनेजमेंट कोर्स में जाना चाहते हैं, उनका माइंड सेट होना चाहिए, दे वांट टू डू द जॉब
और दे वांट टू डू सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप। दोनों में ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। देश जिस कंडीशन में चल रहे हैं, मतलब आज हम डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज हैं जहां वो स्टूडेंट्स को सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी एनकरेज करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स या तो एमबीए करने के बाद, जिसको हम एबीएम बोलते हैं, करने के बाद में या तो किसी भी एग्रीकल्चर फूड की जो एग्रो इंडस्ट्रीज है उसमें बड़ी पोजीशन ले सकते हैं, या फिर खुद का एंटरप्रेन्योर भी डेवलप कर सकते हैं। उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारा फंडिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनके पास है। तो मेरे तो यही विचार है कि ABM और MBA has good opportunity and students should prepare for doing MBA। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि MBA या ABM के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में। क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर यू गॉट योर डिग्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ए स्टूडेंट इज थिंकिंग हाई, he should get his MBA or ABM for a reputed institute। हालांकि उनके कोर्सेज महंगे होते हैं, लेकिन उसी तरह के पैकेज उनको मिलते हैं। जिस तरह के रेपुटेड इंस्टीट्यूट से डिग्री करेंगे उस ढंग के पैकेज ही उसको मिलेंगे। तो बेस्ट इंस्टीट्यूट से ही MBA करना चाहिए, ये मेरा एडवाइस है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस अबाउट दिस फील्ड। काफी बच्चों को और डिटेल में नहीं पता था, आपने बहुत अच्छे से समझाया बच्चों को। और सर, ऑन और एनी अदर इंफॉर्मेशन और गाइडेंस यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स हियर, जस्ट यस, एक्चुअली इससे रिलेटेड, करियर चूज से रिलेटेड। करियर मेरा एक ही गाइडेंस है स्टूडेंट्स के लिए कि whenever you are studying in undergraduate course, ठीक है, आप 1-2 साल तो ठीक है कॉलेज लाइफ में आप आए हैं, थर्ड ईयर ऑनवर्ड यू शुड क्या करना है आपको। थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर इसलिए कि हमारे 4 साल का प्रोग्राम है, अगर 3 साल का अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम है तो आपको सेकंड ईयर में पूरा प्लान कर लेना चाहिए। अगर आपका प्लान बहुत प्राइवेट सेक्टर में जाने का है, MBA के लिए जाने का है, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का है, उस तरह के कॉम्पिटिशन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन बहुत है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका जो टारगेट है ना, उसको अचीव करने के लिए पूरा प्लान करना चाहिए। And that should be started after second year or third year onward. Thank you, sir. Well said. And all these things will not only help the students to achieve their target or their diamond, but will also enhance their mindset for the future. Yes, mindset is And very important। yes, और अपना खुद का कैरियर कितना, खुद का पोटेंशियल पहचानना चाहिए। अगर आपका पोटेंशियल ही नहीं और IAS बनना चाहते हो, दैट इज नो मीनिंग। सबसे पहले अपना पोटेंशियल डिसाइड करें, घर की कंडीशंस देखें कि वेदर यू आर एबल टू स्पेयर द टाइम, और उस हिसाब से अपना प्लान करें। बिल्कुल सर, थैंक यू। And I hope every student present here had, enjoyed the webinar and got an insight too about the topic specifically. कुछ students के question है तो वो chat box पे छोड़ सकते हैं, and Yes, our team and sir will contact you soon regarding the answers. And also tune in for the next webinar. We hope that this and upcoming will be useful to you all. And thank you so much, sir, for joining us today. thank you, madam.